If a teleporting device is invented, would you like to be teleported? So basically, how a teleporting device function, according to theory, is that if you have to be teleported from one place to say point A to point B, at point A you'll be disintegrated, डिसमेंटल कर देंगे. and then at point B you'll be reconstructed with all your whatever essential whatever. memories and body and all of that features and everything. So with that being the definition of teleportation, would you like to be teleported? मैं तो इतनी जल्दी में नहीं हूँ कहीं पहुँचने की. I can take my time. सेकेंड वाला अच्छा लग रहा है, कहीं पहुंच जाऊंगा. लेकिन क्यों लेकिन पहुँच- डिसमेंटल कर देंगे वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा. थॉट प्रोसेस स्टार ट्रेक में जो दिखाते थे लाइट exactly. वही था, सेम वही था ना. सेम ऐसा कि वो यहाँ से वहाँ चला गया. हाँ तो चले जाएंगे. चले जाएंगे because you'd be the same person. हाँ मजा आएगा, कहीं और प्लेनेट में चले गए, कहीं चले गए. Right. What about you, Raman? मैं तो एज अ कॉन्सेप्ट ओनली आई डोंट थिंक कि मैं आई कैन मतलब फॉर मी इट इज नॉट अबाउट रीचिंग समवेयर. फट से अभी मुझे दिल्ली पहुंचना है हाँ. इस मोमेंट पे, हाँ. तो तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो. हाँ. हाँ मैं जाना चाहूंगा, दिल्ली नहीं कहीं और, बट आई एम रेडी टू गो. What if I told you that if in true sense teleportation में you would be dead at point A? नहीं समझा नहीं, मतलब मुझे मार दोगे यहाँ पे तुम. हाँ मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहे हो ना किसी फॉर्म में, तो आप तो आई वुडंट वांट टू बी द फर्स्ट वन टू बी टेलीपोर्टेड. अगर पहले को तुमको टेलीपोर्ट करके तुम सेफली पहुंच गए तो फिर मैं जाऊंगा. हाँ, तो if you say for example if you agree, would you be still the same person is what you feel? Would I be the same person? Yes, I will be the same person. Great. Hello everyone. Welcome to another episode of Three Dots and Hash, where we three dots mostly ramble about random things. And today would be one such another day. And I'll be moderating the episode today. So I welcome my friends Baba and Raman. नमस्कार. With that note, I'd start with the topic today. So basically, the topic is on a famous philosophical thought experiment called Ship of Theseus. Okay. So the story goes is like it's a mythological story where Theseus, a mythical king, had saved children of Athens or like people of Athens from a battle, and he got them back. When he got back, as a sign of victory, the ship that he used for battle was revered as, very a souvenir, a memorabilia. So what used to happen, in order to celebrate the victory every year, they used to keep the ship intact by changing whatever defective parts they used to find from time to time because the ship was battered during the battle as well. So the philosophers ask here is it the same ship after all the parts have been changed over a course of time? Is it the ship of Theseus is the question. What do you think, Baba? Yeah, in one word, I would say yes. We associate, again, identity is a word we'll possibly use a lot during the podcast itself, right? So once you associate the identity of ship of Theseus to that object, right? Then even if you are replacing it part by part over a period of years, the identity associated with that ship is not changing as per me. Of course, we'll debate about it. Is not as per, मतलब अलग चेंज ही हो गया. मतलब लेट्स से ब्लैक कलर था, उसको तुमने व्हाइट कर दिया. आई एम जस्ट सेइंग फॉर आर्गुमेंट सेक, राइट? इट इज स्टिल दैट. अभी घर भी रंग करते हैं ना, हम भी कपड़े बदलते हैं, राइट? एंड वी आल्सो, आवर मॉलिक्यूल्स आल्सो आर चेंजिंग, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. We'll get to that point later. So I think I would say it is still ship of Theseus. Theseus. Okay, so Raman, my question to you is, what if, say, all the rejected parts were collected and made another ship? Would that be ship of Theseus now? मतलब मेरे लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि शिप ऑफ थीसिस क्या है, थीसियस क्या है. हाँ. है ना, कि जैसे तुमने कुछ खरीदा तो वो तुम्हारा घर है, ठीक है? वो घर तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक तुम एग्जिस्ट करोगे, वो तुम्हारा घर रहेगा. तुमने पेंट करा दिया, जैसे बाबा कहते सफेद से काला कर दिया, पेंटिंग जो भी, वो तुम्हारा ही घर है, राइट? अब जब तक लोगों की मेमोरी है तुम्हारी, तब तक वो तुम्हारा घर, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग. ये बहुत शॉर्ट में, मतलब आई एम श्योर विल गेट इनटू द डिटेल्स, बट जब तक मेमोरी है लोगों के पास तुम्हारी, till you are alive in their memory, still there is the last person who remembers you. It will be your house, right? But after you die, the object also loses its identity. Well, after the memory dies. After the memory of the person, it is Memory is a very associated key with. word here. So I let him explain. है ना, तो जब तक memory of the person
who it is identified with the object. Till the time it is alive, the object can be identified as X's object या Theseus ship. जब तक थीसियस की मेमोरी है, थीसियस का फिजिकल वो नहीं, जब तक थीसियस की मेमोरी है, जब तक लोगों को पता है थीसियस कौन है, जब यही नहीं पता लोगों को कि थीसियस कौन है, तो शिप की भी आइडेंटिटी एक शिप की ही रह जाएगी. एब्सोल्युटली. तो क्योंकि जब आप एक चीज को आइडेंटिफाई करते हो ना, तो वो अपने फिजिकल मैनिफेस्टेशन से और बड़ी हो जाती है. आपने जैसे ही किसी चीज को आइडेंटिफाई किया, इट ऑल्सो टेक्स सम मेटाफिजिकल फॉर्म एज वेल. इट बिकम्स एन एसेंस, इट बिकम्स एन इमोशन, जो भी, जैसे कंपनीज है या जो भी है, जहां पे शायद it is not, जैसे every drop is the flowing, then what is the river, right? But it is still Ganges, or it is still Ganga, or it is still Yamuna, right? What is Yamuna, what is Ganga? तो it is the same thing. जो आपका association है ना, वो physical form से बड़ा है किसी चीज का, वो it is associated with a myth. But the or river a का story. भी ये theory you know ना, you don't step on the same water twice. You cannot, because the water is flowing. हाँ, तो वही आई थिंक टू मैंने टेक हिज थिंग फॉरवर्ड. सभी चीज का एक स्थान काल पात्र है, जैसे बोलते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में ताजमहल आगरा में है, ओके. लेट्स से ताजमहल को डिसमेंटल करके ब्रिक बाय ब्रिक और मार्बल बाय मार्बल हमने ताजमहल को मैसूर में बना दिया, जस्ट फॉर आर्गुमेंट सेक, राइट. दिखने में वैसा ही होगा, लेकिन वो आगरा वाला ताजमहल नहीं होने वाला. देखो, ताजमहल अब सिर्फ ताजमहल एक बिल्डिंग नहीं है, उसके पीछे एक लेजेंड है, उसके पीछे एक स्टोरी है, एक मिथ है. वहाँ भी बना था. इतने लोगों के हाथ कटे थे, इतने सालों में मरा था. So it is the whole thing that constitutes Taj Mahal. It is not just the physical form or the end product. But what is that thing when it comes to a human being? What do you think? So identity पे ही मैं वापस आऊंगा. Identity ना यहाँ पे एक तो है कि लोग आपको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और एक है आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना. जब कुछ लोग हैं जो अपने आप को फिजिकल बॉडी से तो आइडेंटिफाई करते ही नहीं है, Correct. राइट. दे बिलीव कि soul is every, like soul is who you truly are, or your actual form, and this is just like a, you know, जैसे मूवी हॉल में पर्दा होता है ना, जिसमें मूवी चलती है, तो हम पर्दे हैं जिसके ऊपर एक स्टोरी चल रही है, बेसिकली दैट. तो मेरे लिए तो मैं जब तक आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, मे बी जिस दिन शायद मेरी ये कैपेसिटी होती कि मैं हर एटम देख पाता, क्या मर रहा है क्या जिंदा हो रहा है, हर सेल देख पाता क्या मर रहा है क्या जिंदा हो रहा है, तो शायद मेरा थॉट प्रोसेस अलग होता. अभी मैं उतना माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को. मेरे लिए तो whatever it was yesterday, it is still the same today. Okay, so then I have a follow-up question, Raman. Taking the same example of Ship of Theseus, right? Say a 7-year-old Raman and a 21-year-old Raman and the Raman today were 3 people existing in the same timeline. Say today. If you were to meet 7-year-old, a 21-year-old yourself, and the one that you are today, who would be more Raman, or who would be the more real? I get you. और इस पे Would you be the real Raman and they would be not? And how would you define that? ऐसा तो नहीं, मेरे को सभी रमन ही हैं. मतलब Exactly. So that is that twist. वो जो मैं तेरे को बोला था ना, Ship of Theseus वाला. So basically replacing Planck you are thinking physically, but metaphysically अगर आप सोचो कि 7 साल वाला रमन vis-a-vis 21 साल वाला रमन और 33 साल वाला रमन, ज्यादा रमन कौन है? सभी रमन है. क्योंकि वो एक आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं. Are you getting it? At the core of it is this identity that this body is Raman. ना जब तक वो बॉडी रहेगी, वो आइडेंटिटी मेरे लिए भी है. That body has changed. तेरे को पता है ना, 7 years में your every cell has been replaced. I agree. But क्या मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ? लेकिन तुम्हारा मेमोरी सेल्स तो रिप्लेस नहीं हो रहा है. करेक्ट. मतलब मेरी आइडेंटिटी तो यही है ना, मैं रमन तो हुई. आपके मेमोरीज में आपको पता है ना, मतलब मेमोरीज आल्सो इवेड विद टाइम. अ लॉट ऑफ योर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड हो सकता है वो उस समय की बहुत एमिनेंट मेमोरीज रही होंगी, बट अभी आपके पास नहीं होगी, तो यू कांट से योर मेमोरीज रिप्रेजेंट द रियल यू. नहीं, लेकिन कुछ तो कोर मेमोरीज भी होंगे. इट्स एन अमैल्गमेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स. जो भी तुम्हारी, हाँ, जो भी तुम मानते हो, सिर्फ अगर फिजिकल फॉर्म में भी ले, तो अगर मैं मानता हूँ ये दिमाग, ये थॉट प्रोसेस, ये इंसान रमन है. रमन इज एक्वायरिंग मोर नॉलेज, रमन इज गेनिंग नॉलेज. या जैसे भी आप शिप को रिपेयर कर रहे हो या शिप को रेनोवेट कर रहे हो, रिफर्बिश कर रहे हो, तो चीजें ऐड हो रही है. लेकिन वो शिप तो थीसियस का ही शिप है, राइट. उसकी आइडेंटिटी तो वही है. जैसे मेरी आइडेंटिटी है कि मैं रमन हूं, अगर मैं फिजिकल एस्पेक्ट की बात करूं. उसमें और एक सवाल बट मेरा मोस्टली ऑन द सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के उस पे
क्वेश्चन है कि से फिजिकल तो बॉडी लाइक आई सेड कि इट हैज कंप्लीटली चेंज्ड, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, राइट? Scientifically proven, you can see it. You don't look how you used to look at 7 Three years times old. your cells have been completely replaced, every cell. Yeah, Okay, 7 years or something. 7 years or something. Now, what makes you you is what I want to understand. Body we have understood it changes, memory fades, right? मेमोरी फेज नहीं 100% फेज नहीं होता. हाँ, 100% fades मतलब Memories ही identity बनाती है मेरे हिसाब से. जैसे आई वाज ट्राइंग टू से कि जब हिंदी मूवीज में दिखाते थे, राइट, एक्सीडेंट हो गया या कुछ याददाश्त चला गया, राइट, कितने मूवीज में दिखाया कि आदमी का याददाश्त ही चला गया. Yeah. नाउ जो याददाश्त चले जाने के बाद वो आदमी वही है कि नहीं, इट्स अ क्वेश्चन वी कैन टॉक अबाउट. सही है, सेम थिंग. सही है. कि याददाश्त ही चला गया है तो उसका मेमोरी ही अगर नहीं है तो देन ही बेसिकली सीजेस टू बी दैट पर्सन. Because दो चीजें है ना, एक तो है आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो और दूसरा है आप लोग कैसे आपको आइडेंटिफाई करते हैं. शिप को लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अगर शिप का थॉट प्रोसेस होता तो जब तक शिप मानता कि मैं थीसियस का शिप हूं तब तक वो थीसियस का शिप होता. यहां पर आपका भी एक थॉट प्रोसेस है और लोगों का भी एक थॉट प्रोसेस है. ठीक है, आप किसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हो अपने आप को जो स्ट्रांगली रूटेड है मेमोरीज में. मेमोरी इज द एंकर टू एग्जिस्टेंस. आई आल्सो थिंक मेमोरी इज द कीवर्ड. क्योंकि तुम देखो, सोचो कि आज अगर मेरे को याद ही नहीं होता कि मेरा नाम रमन है तो क्या मैं रमन. तुम देखो अभी, अच्छा, ये जो सरदार पटेल का बड़ा स्टैचू बना है, राइट, स्टैचू ऑफ यूनिटी. अभी सोचो कि एवरीबॉडी नो सरदार पटेल, राइट. नाउ अभी जैसे वो होता है ना कि मैन इन ब्लैक में एक मशीन था, याद है, ऐसे प्रेस किया तो पूरा आधा घंटे लास्ट का मेमोरी चला गया. लेट्स से कल को कोई ऐसा मशीन करके सरदार पटेल का मेमोरी इरेज कर दिया जाए फ्रॉम ऑल ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट सेइंग दैट स्टैचू विल लूज एवरी वैल्यू, राइट. इट इज जस्ट कि एक पिलर है. नहीं, वो स्टैचू ही रहेगा. मतलब हमें हाँ, ये तो मतलब समझ आएगा कि स्टैचू स्टैचू है, but- किसका है हमें नहीं पता. लॉस्ट इन तो इट इज इट वुड नॉट बी statue- पटेल स्टैचू. हाँ, तो इट वुड बी अ स्टैचू. statue. So it has the whole significance is lost. या So I think memory is the anchor. आइडेंटिटी इज रूटेड इन मेमोरी एंड मेमोरी इज द एंकर टू एग्जिस्टेंस. सो इसमें ना मतलब बेसिकली द सोल्यूशन में चॉम्स्की, हॉब्स सब ने कोशिश किया एट अ ह्यूमन बीइंग लेवल. मतलब शिप ऑफ थीसिस तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ थॉट एक्सपेरिमेंट, राइट? इट्स लाइक नॉट अ रियल थिंग. तो the funny part is that they've not been able to physically they've not been able to pinpoint कि so Locke's theory करके जो memories आप लोग बोल रहे थे उस पे Locke's theory पे है कि is it our memories which make us us, right? तो उस पे भी मतलब they've been many speculations and questions around it. So then that makes this question or this thought experiment unique कि it has been baffling philosophers since time immemorial. इसमें ना एक चीज मैं ऐड करना और चाहूंगा. मैं आई वाज हैविंग दिस डिस्कशन विद समबडी जिसने ये बोला कि जिस भी चीज को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो वो तुम नहीं. अगर आप अपने थॉट्स ऑब्जर्व कर सकते हो तो दैट मीन्स आप यू आर नॉट योर थॉट्स. इफ यू कैन ऑब्जर्व योर फिजिकल बॉडी दैट मीन्स इट इज नॉट योर बॉडी. और जैसा तूने बोला ना 7, 21, 35, अगर आप देखो ध्यान से सोचने की कोशिश करना, ये मैं भी आई हैव बीन ट्राइंग दिस, मैं तो अभी कहीं पहुंचा नहीं हूँ, बट देयर वुड बी सम पार्ट ऑफ यू जो तू 7 साल के रमन में देख के भी तुझे एज रमन तू बोलेगा दैट हैज बीन कंसिस्टेंट. देयर वुड बी सम पार्ट ऑफ यू दैट हैज बीन देयर थ्रू आउट व्हिच इज नॉट. What are those parts? कुछ होंगे, मतलब मैं शायद शेयर भी ना करना चाहूँ बट कुछ होंगे. वो तो जैसे बर्थ मार्क्स, आई एम जस्ट सेइंग, सब सेल चेंज हो जाए वो मार्क रह ही आई जाता थिंक है. दैट इज कोडेड इन योर डीएनए. नहीं, जैसे तुमको वो भी लगे ना, जैसे यहाँ पे देखो कहीं पे एक मार्क होगा मेरा, राइट, आई गॉट हर्ट समवेयर. नो मतलब खेलने कूदने में कुछ गलत काम नहीं किया था. इधर कैसे हर्ट हो? अरे चश्मा नहीं पहन के तो चश्मा नहीं पहना और एक गेट मारा था, गेट उल्टा घूम के आ गया, जो भी है, राइट. Now even if all the cells have changed, this has remained, na? This is not the birth mark. But that in today's time that also can be altered. No, that is mechanically alter करो वो तो अलग कहानी है, right? तो इसमें I think another question will possibly come also. ये जो clone वाला idea है, right? The whole idea. I was coming to that question. Yeah, वो yeah. आएंगे, चलो, ठीक है. So जो आपने memories वाला मैंने इसीलिए बोला वो कीवर्ड है, ठीक है. तो I will come to that part. So अभी डिस्कस करेंगे कि what are pop culture references, ठीक है, to engage our audience. I'll suggest 2 movies that you guys should definitely watch if this thought interests you. One is Ship of Theseus. It's by Anand Gandhi, and the other one is Prestige. So pop culture references में भी Ship of Theseus you would find there are a lot of theories. जैसे एक theory है कि मतलब the whole is more than some of the parts,
राइट? मतलब WHO पूछ लेना चाहिए. तो do you also feel that some part of you, like Raman said, right, which would be consistent? If I were to ask you, or want you to say, probably rack your brains to give me 2-3 cues, what would those 2-3 things be? I will tell you why it is important in the next segment. So, like one Raman pointed out is memories, right? Your memories is a key part of defining who you are, right? Second could be, say, Baba, whatever you feel. So, try to give me 2-3 cues which you think make you. एक तो है your instinctive bodily reactions, right? कि जैसे जो मैं जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, ओके, जैसे मैं 10 साल की उम्र में ऐसे बॉल आता है तो मैं फ्लिक करता हूँ लेग से. आज के तारीख में भी मोस्टली मे बी द टेक्निक विल बी सेम, इवन इफ आई हैव लर्नड अ फ्यू मोर, वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन वैसे रहेगा कि मैं फ्लिक करूँ, वेदर आई एम एबल टू डू दैट विद पेट मोटा हो गया, वो सब अलग कहानी है. तो आई थिंक योर इंस्टिंक्ट्स टू वेरियस एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बोलते हैं ना, स्टिमुलाई एंड रिएक्शन, राइट? तो वो तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दोज इंस्टिंक्ट्स विल बी सेम, कि मतलब फट से एक गाना सुन गया किसी किशोर कुमार का गाना, सुनते ही अरे किशोर दा का आवाज है. तो आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम मेमोरी टू एन एक्सटेंट, सम फ्रॉम मसल मेमोरी, सम फ्रॉम इंस्टिंक्ट. आई थिंक मसल मेमोरी, इंस्टिंक्ट इज ऑल्सो अनदर थिंग. आई थिंक मोस्टली कांस्टेंट रहेगा, और एक इट हैज कांस्टेंट नहीं रहने से भी इट्स अ लिंकेजेस टू, एक कांस्टेंट लिंकेज तो रहता है. तो But I क्यों think- क्या है? हैं? क्यों क्या है बाबा? इतना आप ना, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए आप 10 मार्क का सवाल जवाब क्यों देते हो? Instincts, I think instinctive reactions to similar stimuli. चलो बहुत साइंटिफिकली बोलते हैं. 4. I don't have an answer. So the reason why I was asking you is that, say if in today's time and age, human cloning is possible. Banned though, but it is still possible. And it has, there are various episodes where, so Doctor Who ka, there's an episode where they create clones of human beings to kill some predators or something in some jail or somewhere. So if your clone is embedded with all your memories, the reason why I asked those cues was that whatever those cues that you can think of, say आपका, जैसे आपने बोला instinctive this thing and your memory, if all those things can be embedded in that person, again we are talking hypothetically. Hypothetically, हाँ. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कर दूंगा. Would that person be Baba then, or would that person be more Baba than you? No, I think Or Raman, to you also the same question I think अगर बाबा का क्लोन सोचता है कि वो बाबा है, तो वो बाबा है. बाबा क्या सोचते हैं? नहीं, मैं सोचूंगा कि वो नहीं, उसकी आइडेंटिटी है ना. अगर वो सेम थॉट से सेम आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो दैट पर्सन आल्सो हैज देयर ओन. उसमें हाउ आई लुक एट इट ना, जो डिस्कशन होता है अबाउट AGI का डिस्कशन कर अभी AGI पे नहीं, अभी नहीं, ह्यूमन नहीं, सबसे पहले तो मेरे को लगता है पॉसिबल ही नहीं है टू स्टार्ट विद. हाइपोथेटिकल बात हाँ, कर रहे हैं. हाइपोथेटिकली ह्यूमन क्लोनिंग तो पॉसिबल है ना. ह्यूमन क्लोनिंग तो पॉसिबल है. नहीं, मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल है. ह्यूमन क्लोनिंग मतलब तो क्या बोला 100% You cannot create life out of nowhere. I don't feel it is possible. शीप क्लोनिंग तो हो रहा है. तो डॉली द शीप याद होगा आपको. हाँ, क्लोनिंग मतलब तो क्या? चलो ह्यूमन से शीप पे आ जाते हैं, राइट? सो डॉली द शीप जिस भी शीप से ये बना मेरे को था. नहीं पता है. अरे इट्स जस्ट अ वे टू टिंकर थॉट प्रोसेस. नहीं, बट ये हुआ है क्या एक्चुअली कहीं पे? डॉली द शीप है क्या? This is शीप हैज बीन क्लोन्ड, राइट? सो चलो like a live sheep. हाँ हाँ, वो क्लोनिंग हुआ था बहुत साल, 20-25 साल हो गए वो. Huh. So the question here is, or the thought that I want you guys to tinker is that कि वो डॉली द शीप जिस शीप से बना होगा, कौन सा, लेट्स नेम दैट शीप A, तो A ज़्यादा A है कि डॉली ज़्यादा A है? डॉली है. डॉली को तो मिल गई ना आइडेंटिटी. मैं वही कह रहा हूँ, आइडेंटिटी का खेल है पूरा, और आइडेंटिटी बन रही है आपकी मेमोरीज से. बाबा मेमोरीज कहीं और, आपने फिजिकल बॉडी है, अगेन फिजिकल बॉडी के हम नहीं मान रहे कि हम सोल पे जा रहे हैं, राइट? कि नहीं, सोल को भी लेके ही बात करेंगे ना. सोल को लेके बात कर रहे हैं, तो सोल के साथ तो फिर ये आपका इंडिविजुअल सोल है ना. सोल थोड़ी ना क्लोन कर दिया, सिर्फ फिजिकल बॉडी क्लोन कर रही. इसलिए मैं नहीं मान पा रहा हूँ कि अलाइव. जीता जागता जानवर है वो. नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, कि तुम अगर किसी एक चीज को बोल रहे हो कि along with memory, soul, सब कुछ 100% बना दिया, then that person I can still think of agreeing कि वो मैं ही हूँ. क्योंकि वो तो मानता ही है कि वो है.
वो मानता है। जो तुम बोल रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? दुनिया तो मानेगी। आज के एकदम मेरे जैसा आदमी नहीं, बैठा है। वो क्या मानता है? सबसे पहले तो उस पे आते हैं। वो तो मानना ही अभी नहीं। ना बाबा, आप क्या मानते हैं? अभी मैं नहीं मानूंगा। आई एम नहीं द मानते? मॉडरेटर, मेरे को आप लोगों को 2-2 मिनट देना है टू डिफेंड योर आर्ग्यूमेंट्स। रमन बोल रहा है कि डॉली डॉली है और आप बोल रहे हो नहीं डॉली ए है, जैसे आपने बोला वो बाबा है। नहीं, वो मैं भी बोल रहा हूँ कि वो, मैं कह रहा हूँ जो भी आइडेंटिटी उसको लगता है, क्लोन को लगता है या जो भी है, नहीं बट आई एम क्लोन के लगने की बात नहीं है ना, आई एम सेइंग हु इज द रियल बाबा, इज दैट आल्सो रियल बाबा, यू आर आल्सो रियल बाबा। रियल दोनों ही है। अगर दोनों एक, व्हाट इज रियल? रियल इज व्हाट एग्जिस्ट, राइट? यहाँ पे 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम मुझे वापस मैं क्वेश्चन 3 मत फ्रेम ऑफ करो, रेफरेंस से बोलूँ। मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपके पास 2 मिनट है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर मी ही इज नॉट बाबा, फॉर हिम ही इज बाबा, फॉर द वर्ल्ड ही इज बाबा। बट हु आर यू? वही तो बोल रहा हूँ ना, इट इज खेल का तो रेफरेंस का ही खेल है। दैट्स द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। नहीं, बाबा का इसका कहने का मतलब ये है, अगर बाबा ये बोल रहे हैं कि दैट इज नॉट बाबा, कि यू आर समथिंग मोर देन योर फिजिकल बॉडी। सिर्फ फिजिकल नहीं, तुम बाकी भी ले लो, ओके? कि उसको पूरा मेमोरी भी इम्बेड कर दिया, सब कुछ इम्बेड कर दिया, देयर विल बी स्टिल समथिंग डेल्टा बिटवीन व्हाट इज दैट डेल्टा? व्हाट इज दैट डेल्टा? दैट डेल्टा शुड बी, कैन इट बी अ फिजिकल एस्पेक्ट? इट कुड, मैं कह रहा हूँ वो है ही नहीं, चांस ही नहीं है। फिजिकल एस्पेक्ट तो नहीं। व्हाट इज नॉन फिजिकल और मेटाफिजिकल? एक तो मेमोरी वाला कहानी है। मेमोरी तो दे दिया ना, तो दे पूरा दिया, पूरा दे पूरा दे दिया। दिया। एक एक मेमोरी जो आपके पास है वो उसके पास है। हाँ। एग्जैक्ट फीलिंग्स सब कुछ दे दिया। एग्जैक्ट आपकी जिंदगी में जो आज तक घटा है, हाँ। एवरी डे दैट यू हैव गॉन थ्रू, द पर्सन हैज द सेम मेमोरीज। दैट पर्सन बिलीव्स इट, ही हैज ग्रोन अप लाइक यू हैव ग्रोन अप। अब यहाँ से बताओ। एक्चुअली So I would want to ask the audience before I move to the closing segment, what is your like what makes you, what is that identity, or what does identify as a part of you or you? Please do write in the comments and let us know. Before I close, I also have another question for you, Baba. Say if one by one, one by one, people were to replace one of us. Would it at the end of the day become a cooking show? नहीं समझा, एकदम नहीं समझा मैं। बिल्कुल नहीं समझ आया मुझे भी। I'm saying कि if one by one, in this podcast, one of us keeps getting replaced, Okay, me replaced by some other person. at the end of the day, what's the chance of it becoming a cooking show? Cooking show in the sense? कि कुछ और ही बन जाएगा। अच्छा, This will result in something else. It हाँ, should तो not. let's say 3 new dots. Would it still be 3 dots in hash? Let's start there. Let's say अगर कल को बाबा नहीं आए, बाबा की जगह हमने किसी और को बिठा दिया, तो would it still be 3 dots in hash? It will be a modified version of 3 dots. I think as intellectual property, 3 dots in hash would remain, but the 3 dots would not be the same. For example, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, I think वो तुलसी 6-7 बार बदली है, या जो भी काफी कैरेक्टर्स बदले हैं, बट वो रहती तो तुलसी थी क्योंकि the character is that. What an या वो analogy. क्योंकि सास भी कभी बहू थी ही रहता था वो, Only right? difference is कि हम क्योंकि सास भी कभी बहू थी जितना लंबे टाइम तक, तो चल मूवी आ रही है उसकी बाय द वे। भाई वो कितने 1000 एपिसोड कर चुके हो, हम कर पाएंगे भाई क्रेजी किया था उन्होंने तो। Basically what I agree is identity of any entity remains unique to it Yeah, itself. and identity is based on memory. If I have to like sum it up in one line, I wrote this: the ship does not sail on water; it sails on memory, and it sinks only when forgotten. So when the memory of something fades away, the identity also fades away, and then a Theseus ship becomes just a ship. Just a ship. Okay, food for thought, people. So with that, we've come to an end. But before we conclude, I would just want to summarize what we discussed, and what I could understand is that what makes us is an amalgamation of multiple things, right? Could be our experiences, could be our the people that we are surrounded with, could be the situations that we faced, could be our physical attributes, what we feel about ourselves, right? But all of this leads to an identity which I believe is very unique to every individual, and each one of us needs to understand and identify what makes us unique and work on that. So do let us know in comments what makes what makes you you. What do you identify as yourself? And with that, signing off. Thank you. Bye bye. Thank you. Nice, quick and short. बहुत ही बढ़िया।